police shot and killed 2 militants in New Delhi today. It happened during a raid in connection with last week's deadly bombings there. Now, the crackdown on terrorists in the capital has exposed the young face of terror in the country, but 3 of the young men who were part of the blasts across the country over the past few months hail from Azamgarh. I'm going to Azamgarh. Not many people have much reason to travel to this place, except those who belong here. I'm going to Azamgarh out of a curiosity, actually a desire, to journey through the nature of suspicion and prejudice that of late has singularly come to define this place. आप वैसे यहीं रहते हो आजमगढ़ में? आप आजमगढ़ के ही हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है। किस जगह के आजमगढ़ में? गांव है हमारा तो कुतुबपुर गांव है। तो वो आप कह रहे थे कि बीच में बदनाम कर दिया था, क्या किस वही आतंकवाद वगैरह की वजह? वो तो क्या चलता रहता, चैनल पे देखते थे, टीवी पे। बाकी क्या है, ये तो अभी आया था, ये 1-2 साल हुए होंगे, 1 साल हुआ होगा और क्या। बाटला हाउस कांड के बाद थोड़ा सा नाम उछला था जब। तो इतनी सारी जो गिरफ्तारियां वगैरह हुई थी, एक के बाद एक होती चली गई। तो इनके बारे में तो हमें क्या पता है। हाँ, ये भी एक परदेसी टाइप है ना। जो खबरें दिखाते हैं आप लोग, वही तो हम लोग। हाँ, सही बात है, खबरें तो आप लोगों को ज़्यादा पता होता दिखाते हैं, क्योंकि आपकी न्यूज़ से ही ज़्यादातर जानकारी मिलती है। हम तो दिल्ली में बैठे, हमें तो जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाएगा वही देखेंगे हम। सही बात। रियलिटी क्या हो रही है तो हमें यहाँ थोड़े पता है, वो तो पुलिस वाले जाने और पत्रकार लोग जाने। सही बात है। पर न्यूज़ हमेशा सच होती है। उसमें कुछ चैनल है जो वैसे सनसनी फैलाते हैं अपना, हैं बनाते रहते हैं। अब कोई एलियन उतार देता है, रात को खिड़की बंद रखी है। सही बात। कोई दीवार में आदमी घुसा देता है, ये आदमी दीवार को आर पार करेगा। ऐसे भी न्यूज़ दिखाते रहते हैं। एक आते हैं महाराज चोटी रख के कहते हैं चैन से सोना है, जाग जाइए। कितनी आबादी होगी यहाँ की, आजमगढ़ की? आजमगढ़ में ऐसे होगी 45 लाख होना चाहिए। और क्या वो मिली जुली आबादी है? कितने हिंदू कितने होंगे, मुस्लिम कितने होंगे? हिंदू ज़्यादा, हम लोग 75 हैं तो हम लोग 25 ही हैं। तो कहते हैं लोग कि यहाँ के लोग बहुत सारे आतंकवादी वगैरह। आजमगढ़ को असल में ऐसा बना दिया गया, आजमगढ़ को इसका नाम ही गलत रखा गया। आजमगढ़ सब पढ़े लिखे जो हैं तरक्की कर रहे हैं उन्हीं को बस पता है। देखिए मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं उनको तुरंत पुलिस वाले पकड़ लेते जो हैं। पायलट बनने वाले हैं या कोई जो ऐसा दिल्ली में देखिए कितने पता लगा लेते हैं कि People who came to receive me gave me my very first hint that not many people here are willing to come in front of the camera. To speak or not to speak seemed to be everybody's struggle in Azamgarh. Azamgarh is a small, sleepy district in Uttar Pradesh. But 3 years back in September 2008, everything changed. 2 young boys belonging here were shot down by police on grounds of being alleged terrorists in the Delhi's Muslim neighborhood of Batla House. A number of controversial arrests of many more young Muslim men belonging to Azamgarh followed. Corporate media rushed in with their hurried breaking news campaigns, and the police made some enthusiastic claims.
आतिफ के कंप्यूटर में बैकग्राउंड में, जिसको हम कहेंगे कि वो अल-कायदा से बैप्टाइज था। अल-कायदा का बहुत मटेरियल मिला है इसके उसमें। Those arrested are still not proven guilty in the law courts. But at last, the only picture allowed to stick in popular Indian imagination is of Azamgarh as Atankgarh, a nursery of terror, a fertile breeding ground of dangerously deranged terrorists. But should that be the end of the story? Is that all that is there to this place? How do locals understand the stigma they have found themselves to be struggling with? Are there more stories, other histories, more voices that one has yet not heard? I go to Sanjarpur. This is the village the boys killed in Butler House encounter belonged to. And so did many of the later arrested ones. As expected, their families were not comfortable to come on camera. Here at a tea stall, I meet Tariq Shafiq, who has been working on the issues of human rights since 2002. तो यहाँ आप लोगों का काम जो है आजकल कैसे चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं? वही सब चल रहा है। अभी तो जैसे कस्टोडियल डेट हो गई है, थाने के अंदर एक लड़के को मार दिया गला दबा के, और हम लोग छानबीन के पता चला उसके ऊपर कोई FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें गला दबा के मार दिया गया। DIG की जो बयान है, उसने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, नाड़ा लगा के वो होल्डर में लटक गया फांसी पे। मतलब वो बयान देते वक्त भी ये नहीं सोचते कि होल्डर कितना वेट थाम सकता है। और भी महिला दलित महिला उत्पीड़न या ह्यूमन राइट्स वाले से, चाहे बटला हाउस वाला मामला हो, चाहे UP कचहरी ब्लास्ट का मामला, इस तरह का मामला चला। अभी कुछ लड़के छूटे भी हैं इस केस में। इस गांव का भी एक लड़का छूटा है। 2007 में यहाँ आजमगढ़ में एक लड़के को उठाया था हकीम तारिक नाम के। तो पहले तो हम सुनते आते थे कि उठाया और मार दिया, तो आदमी ये जानता था कि हो सकता है, क्या था पता नहीं, वहाँ तो गया नहीं। लेकिन यहाँ देखने के बाद ये समझ में आया कि किस तरह से लोगों को उठाते हैं, कहाँ से दिखाते कहाँ हैं। अब आजमगढ़ से उठाया था निहत्थे चेक पोस्ट और दिखाया बाराबंकी, मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ दिखाया, वो भी 10 दिन बाद ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया कचहरी ब्लास्ट का। तो इससे ये एक समझ बनी कि नहीं, इस तरह से बहुत सारे, अब जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ आतंकवाद के नाम पर टार्चर किया जा रहा है, जहाँ गरीब आदिवासी हैं उनको नक्सली के नाम पर टार्चर किया जा रहा है। तो उसके बाद से लगातार हम लोग काम करना शुरू किए, लोगों के अंदर लीगल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे आजमगढ़ में कानूनी जानकारी ना के बराबर है, किसी को पता ही नहीं है। Along with Tariq work a number of like-minded friends like Masiuddin Sanjari. Together these feel that post-Butler House incident, there are very good reasons to be more vigilant, more aware of the increased possibilities of human rights abuse in these times of a sweeping war against terror. और हम लोगों को सही बात यह है कि देर रात तक ये मालूम नहीं था कि संजरपुर के अलावा भी आजमगढ़ में कहीं कोई लड़का अरेस्ट हुआ है या कुछ, हालांकि हो चुके थे। वो अफरा तफरी का माहौल था कि हम ये खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये बाज़ार में पूरी फोर्स लगी हुई है, हम लोग गांव में बंद हैं, तो अब क्या होने वाला है। बहुत सारी जगहों खबरें आती थी कि साहब पूरा गांव घेर लिया और घर घर तलाशी लिया, उसमें फिर औरतों बच्चों के साथ ज़्यादती किया, मारा पीटा लोगों को, इस तरह की चीज़ें। मुझे तारीख को मुल्ज़िम बना दिया गया। यहाँ एक हत्या हुई थी, वोलमा काउंसिल का सपोर्टर था। तो प्रशासन ने किसी न किसी तरह से हम लोगों को भी ये ब्रांड करने की कोशिश की कि नहीं, ये लोग भी उसी तरह के हैं और उन्हीं ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। बाहर के लोगों को खाली ये दिखाते हैं कि हम जो है वो दूसरी सोच रखते हैं और ह्यूमन राइट्स क्या की हमारे यहाँ कोई अहमियत है। तो और ये बदनाम करने की कोशिश सिर्फ इसलिए थी कि हम लोग एक अलग एंगल से उस सारे मामलात को देख रहे थे, जिसको मैं समझता हूँ प्रशासन को चाहिए था कि हमको सपोर्ट करता। एक इनकाउंटर की वजह से कितना पीछे गया ज़िला, एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, डर के मामले में। मतलब एक हर आदमी के अंदर डर है, जो भी बाहर पढ़ रहे थे लड़के, एक डर बना हुआ आज भी, कब किसे उठाया जाएगा। कुछ पहले इन आँखों आगे क्या क्या न नज़ारा गुजरे था, क्या रोशन हो जाती थी गली जब यार हमारा गुजरे था। थे कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने गम से फुर्सत थी,
सब पूछे थे अहवाल, जो कोई दर्द का मारा गुजरे था। I am meeting Dr. Badrinath. He teaches history at the local Dayanand Mahavidyalaya. It is from him that I get a good historical overview of the social and economic changes Azamgarh has been going through recently and why, of late, it has come to be so misunderstood. देखिए, आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लिए कलकत्ता नौकरी का, रोज़गार का सबसे बड़ा सेंटर था। धीरे धीरे कलकत्ता डिक्लाइन होने लगा और 60s ख़त्म होते होते कलकत्ता एक सेंटर रही नहीं गया और यहाँ के सारे लोग, आज़मगढ़ के सारे लोग जो रोज़गार की तलाश में जाते थे, छोटे मोटे नौकरियों की तलाश में जाते थे, उनके लिए बम्बई एक सेंटर बनता गया। बम्बई में हिंदू मुसलमान दोनों गए और दोनों के कॉमन एक्सपीरियंस रहे, दोनों के एक्सपीरियंस मिले जुले रहे। लेकिन 70s में मुस्लिम्स के लिए एक नई ओपनिंग खुल गई गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने की। कुछ लोग यहाँ से बाहर गए और फिर उन लोगों ने बुलाना शुरू किया अपने नज़दीकी लोगों को, अपने जात बिरादरी के लोगों को, उन लोगों ने बुलाना शुरू किया। उसमें मुस्लिम्स की काफ़ी बड़ी संख्या थी। मुस्लिम्स ज़्यादा अमीर होने लगे और ज़्यादा उनके घर में पैसा आने लगा बनिस्बत हिंदुओं के। तो यहाँ से दोनों के बीच में जेलसी शुरू हुई कि हम लोग तो नहीं कर पाए और ये लोग बाहर चले गए, इन लोगों के लिए एक ओपनिंग और खुल गई। यहाँ पर ये प्रचार किया गया कि जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ओपन है, और ये कहना कि ये जो पेट्रो डॉलर आ रहा है या जो बाहर से पैसा आ रहा है वह सारा पैसा जिम्मेदार है यहाँ के में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। यहाँ तरह तरह की, अब जैसे गाड़ियाँ अगर आ रही हैं तो लोग मान के चलेंगे कि साहब अच्छे राइफ़ल भी आ रहे होंगे, AK-47 भी आ रहा होगा और ये भी आ रहा होगा। यह इस तरह का था। पुलिस भी मुस्लिम्स को ज़्यादा तंग करने लगी। उनके पास पैसा था तो मान लीजिए अगर लड़के को पुलिस वाले उठा करके ले गए तो कल को 10,000 रुपये घर वाले दे जाएंगे हमको। उस जेलसी में जब नेशनल पॉलिटिक्स आ जुड़ी, राइट विंग पॉलिटिक्स थी वो भारी होने लगी, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भारी होने लगी। और उस रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में जाहिर सी बात है कि हिंदू मेजॉरिटी में थे, मीडिया पर उनका कंट्रोल था। इस नाते उन्होंने यह साबित करना शुरू किया कि जैसे जो कुछ भी हिंदुस्तान की गड़बड़ी है उसके ज़िम्मेदार मुस्लिम हैं। उसी के साथ फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जुड़ी, अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। अमेरिका जब सोवियत रूस ख़त्म हो गया तो अमेरिका के लिहाज से भी इस्लाम सबसे साफ टारगेट था। तो इस्लाम को बदनाम करना और यह साबित करना कि दुनिया में सबसे ईविल यही वो है और सारी गड़बड़ियों के जड़ यही हैं, यही सारे लोग हैं, उसका सारा असर जो है वो धीरे धीरे इस पर पड़ता गया। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा माहौल जिसमें सस्पिशन हो, भयंकर भयंकर जेलसी हो, उसमें कोई छोटी सी भी चिंगारी हो, वह चिंगारी ये साबित करती कि साहब देखिए ऐसे ही होते हैं। वो जो स्टीरियोटाइप है और बहुत नुकसान करता है स्टीरियोटाइप वाला, ये थिंकिंग कि ये ऐसे ही होते हैं, यह इस तरह की थिंकिंग जो है शुरू हुई और आजमगढ़ उसका ही विक्टिम बन गया। आतंकवाद की तोहमत के नाते यहाँ के लोगों को तो यहाँ शहर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जिनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो लोग भी बाहर रोज़गार करते हैं, जो भी अपने एड्रेस में आजमगढ़ का जिक्र करते हैं, तो बिना किसी कसूर के वो सारे लोग सस्पिशन के दायरे में आ गए। हमारे पास जो ये ब्लेम लगा हुआ है, इस ब्लेम की वजह से हम कहीं सफल नहीं पाते। After completing our BA or after completing taking our education like BCom or whatever BSc, we are still wondering why. हम यहाँ के रहने वाले, लेकिन जो बच्चों के बारे में यहाँ पर खबरें आई तो हम अपना पर्सनल जो है हम उन्हें जानते हैं, वो ऐसे थे नहीं, लेकिन अगर वहाँ से खबरें आ रही हैं तो हमें बिलीव करना होगा। लेकिन हमने जो मांग करी थी जांच की वो हुई नहीं, तो हम फुल्ली सेटिस्फाई नहीं। I am living here from last 20 years. I haven't find any man who tells me just go and make a bomb, and I haven't find any man who just tell to me, and I haven't seen any bomb in Azamgarh yet. So how the people, how the media of Aaj Tak says that our Azamgarh is a terrorist city? It's not a bad city, it's also a good city of India. It belongs to India, so it's Azamgarh, not Atankgarh. अपना घर सबको प्यारा होता है।
तो एक बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट यहाँ पड़ा है यहाँ के नौजवानों पे। तो बाहर न जाने की वजह से बहुत से लोग बॉम्बे जाते थे, अपना बिजनेस करते थे। तो ज़्यादा लोग जो है वो बाहर नहीं जा रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक तरह से नौजवानों में आवारापन जिसको हम कहते हैं वो बढ़ा है इधर कम से कम 2-3 सालों में। काम नहीं है यहाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस बहुत कम हैं। बाहर जा नहीं रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें भी, पासपोर्ट नहीं बन रहा है आसानी से, या बाहर जाते हैं तो एयरपोर्ट वगैरह परेशान किया जाता है उनको। मेरा अपना पासपोर्ट 2002 से अभी तक नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे लगातार 2002 से ही काम कर रहा हूँ। 2002 का अप्लाई किया हुआ पासपोर्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 5-5, 6-6 साल, 8 साल के पासपोर्ट अप्लाई किए हुए नहीं आ रहा। हज़ारों पासपोर्ट ऐसे आपको मिलेंगे आजमगढ़ के लिए। जिसे 25,000 बच्चे बाहर जाते थे, अब 5,000 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। आजमगढ़ के नाम पे ये नहीं पूछते कि हिंदू है कि मुसलमान, नहीं है भैया नौकरी। मकान नहीं है आजमगढ़ के नाम पे। नाम सिर्फ आजमगढ़ में किया है कि हम आजमगढ़ के रहने वाले, ये गर्व से कह सकते हैं। लेकिन बुरा ही बुरा बाकी चीज़ उसके लिए आजमगढ़ के साथ जुड़ा हुआ। यहाँ पे उद्योगिक शून्य जिला है, मतलब कोई उद्योग नहीं है। अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है। अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर बनना है तो आजमगढ़ आपको छोड़ना पड़ेगा। ले दे के पूरे ज़िले में सिर्फ सिबली कॉलेज है कि ये अच्छी चीज़ यहाँ के लड़कों के लिए कि सिबली कॉलेज यहाँ है कि कुछ पढ़ सकते हैं। Shibli College is a local educational institution that the whole Azamgarh, cutting across lines of religion, caste and class, is very proud and fond of. तारीख़ी लिहाज से आज़मगढ़ में शिबली कॉलेज की सेंट्रल हैसियत है। सन 1883 में जबकि यहाँ पे तालीम के सिलसिले में बिल्कुल अंधेरा था, तो अल्लामा शिबली ने एक नेशनल स्कूल कायम करके यहाँ पे एक रोशनी का मीनार समझ लिए कायम किया। तो उसी के इर्द गिर्द आज़मगढ़ घूमता रहा है। तो शिबली कॉलेज का अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा यहाँ के कल्चर के डेवलपमेंट में, यहाँ के लोगों के आपस में जो रिश्ते कायम हुए। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से जो भी नज़र आएंगे आपको, वकील हैं, टीचर हैं या और सारे लोग हैं, वो यहीं से पढ़ के निकले। अल्लामा शिबली नुमानी रहमा का अपना एक नज़रिया था तालीम का। जैसे वो चाहते थे कि जो मदारिस हैं उनमें नई रोशनी आए, तो इसलिए नदवतुल उलमा ने उन्होंने संस्कृत की तालीम के लिए उन्होंने कोशिश की। दूसरी है कि अंग्रेज़ी की तालीम का उन्होंने पूरी कोशिश किया कि अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें। और फिर एक इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली अकेडमी के नाम से कायम किया अपनी उम्र के आखिरी लम्हों में। शिबली अकेडमी एक मरकज़ था, एक सेंटर था, जहाँ पे यहाँ के जितने इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे लोग, चाहे वो शायर हों चाहे अदीब हों, सबको वहीं से रिकॉग्निशन मिलता था और सब लोग वहाँ पे जाते थे। वहाँ की शाम में महफ़िल होती थी, मजलिसें जमती थी और फिर दुनिया जहाँ की बातें होती थी। और ज़ाहिर बात है कि वो सैयद साहब थे, सैयद सुलेमान नदवी साहब, या बाद में शाह मोइनुद्दीन नदवी साहब, अब्दुलसलाम नदवी साहब, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तो इनके उसमें फिर इकबाल सुहेल साहब जिनका मशहूर शेर है यहाँ पे, इस खित्ते आज़मगढ़ पर मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वह नैर आज़म होता है। तो इस तरह के जितने भी लोग थे वो सब दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली अकेडमी में बैठते थे, जाते थे। और ये एक उनका तसव्वुर था जो उस ज़माने में पता नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कोई इस तरह का तसव्वुर था कि नहीं था, कि एक ऐसी जगह मुहैया कराई जाए, एक ऐसी जगह फराहम की जाए जहाँ पे राइटर्स, ऑथर्स जो हैं वो बैठ करके न सिर्फ लिख सके बल्कि उनकी किताबें प्रिंट हों, पब्लिश हों और उनको किसी तरह की फिक्र न हो। अब यही नहीं, शिबली अकेडमी ने साथ ही साथ जो है लोगों को जहन बनाने का भी काम किया। आपको शायद ताज्जुब हो कि आज़ादी की तहरीक में ये सबसे बड़ा मरकज़ था पूर्वांचल का, ये इदारा। यानी वो सिर्फ लिखने ही पर उसने कहा वो नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकली आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। इसीलिए महात्मा गांधी से लेकर आज तक जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ सब के सब आए। और पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इनका तो ताल्लुक़ घरेलू था। उनके ख़त देखिए आप कि उनके ख़त उनके उर्दू में लिखे हुए वो ख़त जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ से उनका क्या ताल्लुक़ था। तो आज़ादी की जंग में इस पूरे इलाके को लीड करने वाला अगर कोई मरकज़ था तो ये शिबली मंजिल। 1857 के रिवोल्ट में ये इलाका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था
और काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस इस इलाके ने ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ दिखलाई थी। ब्रिटिश रूल में तो इलाका डिलिबरेटली अनडेवलप्ड रखा गया, सड़क न बनने पाए, शहर से न जुड़ने पाए, रेलवे लाइन तक के लिए काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी और बड़ी लाइन बहुत बाद में जा कर के, अभी हाल की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 10-12 साल हुए जब बड़ी लाइन यहाँ पे हो पाई, नहीं तो बड़ी लाइन भी यहाँ पे नहीं थी। तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा। और चूँकि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये भी लीगेसी है कॉलोनियल रूल की, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉलोनियल रूल ने किया सलूक वही 47 के बाद भी गवर्नमेंट ने भी उसी तरह का रास्ता बरकरार रखा, उसी तरह का वो कर रखा, क्योंकि आजमगढ़ ने कभी भी सत्ताधारियों का साथ नहीं दिया। करप्शन हद से ज़्यादा यहाँ पे है और जितने भी हमारे यहाँ के सांसद विधायक हैं कभी ये पार्लियामेंट में कभी कोई क्वेश्चन करते ही नहीं हैं कि कम से कम आजमगढ़ के विकास के लिए किया जाए। आप नाम सुनेंगे पॉलिटिशियन अमर सिंह, बहुत बड़ा नाम है, अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 10 दिन से वर्ल्ड मीडिया में छाया हुआ नाम है। अबू आसिम आज़मी आजमगढ़ के, सुखदेव राजभर जो इस वक्त स्पीकर हैं आजमगढ़ के, एक ज़माना था यहाँ से 15 से 16 सांसद आजमगढ़ के थे, लेकिन किया किसी ने कुछ भी नहीं आजमगढ़ के लिए। अब आप देख रहे होंगे बिजली का सबसे बड़ा मामला, यहाँ 8 घंटे 6 घंटे बिजली रहती है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ दवा नहीं मिलती, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बस जो है उसकी वो सहूलियत नहीं है, लाइक शुगर मिलती है वो भी बंद हो गई। बाप दादा के हाथों से चल रहा है, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सब लोग बाहर भाग रहे हैं, छोड़ कर मजदूरी गिरानी के हिसाब से मजदूरी पड़ नहीं रही है हमारे पास। 3 लोग मिलते हैं, 60-70 रुपये काम होता है। देखिए सारे कारखाने बंद हैं, हालात सुधर तो रहे नहीं हैं, इसलिए सुधरते तो आदमी काम करता, अपने घरों में रह के परिवार को छोड़ के भाग कर परदेश जा रहा है, कोई बम्बे जा रहा है, कोई होटल पे कर रहा है, मतलब इसी तरीके से अपने पेट पालने के लिए आदमी जा रहा है। पेट पर्दा चलाएगा जहाँ भी रहेगा। दवा करने के लिए अगर है तो खाने को नहीं है, खाने को है तो दवा को नहीं है। आज जायदाद बिक रही हैं। यहाँ की जिंदगी कोई खास नहीं, यहाँ कोई न व्यापार है न कोई उद्योग है, कुछ नहीं। मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन जो आज की रणनीति है रिश्वत का और भ्रष्टाचार का, आज के पढ़े हुए नवयुवकों को मिलना बहुत मुश्किल है। हर जगह छोटा से छोटा काम है या कोई भी काम है, पैसे की प्रलोभन ज़्यादा है और दिखाने के कि हम बहुत स्पष्ट निष्पक्ष हैं, हम ईमानदार हैं, लेकिन ऐसा कुछ खाली सुनने को मिलता है, देखने को नहीं। चलिए स्टार्ट करिए। Dr. Ravinder Rai and friends run a quarterly journal, Samayik Karwa. They are meeting today for deciding the content of the latest issue. Most of the editorial board members are non-Muslims, and they are quite concerned about the future of the composite society that Azamgarh has always been. आजमगढ़ में ऐसा नहीं है कि सारे जो मुसलमानों के लड़के हैं वो आतंकवादी हो चुके हैं। कुछ लड़कों को इस रूप में प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे लगा कि पूरे आजमगढ़ के जो लड़के बाहर पढ़ रहे हैं या यहाँ भी जो रह रहे हैं उनके संबंध बाहर के लड़कों से वो सब के सब आतंकवादी हो चुके हैं। उसमें जितनी भी रिपोर्टें हुई हैं, कुछ NGOs ने भी उसमें काम किया है, कुछ हम लोगों ने भी खोज किया है। उसमें जो बच्चे वास्तव में पढ़ने में ठीक ठाक हैं, अच्छे परिवारों के हैं, उन पर यकीन ही नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी हैं। उन्हें भी सरकार ने आतंकवादी या पुलिस प्रशासन ने आतंकवादी घोषित कर दिया है और लड़के जेलों में हैं। आज उनका ट्रायल हो तो कल वो छूट जाएंगे, लेकिन सरकार उनका ट्रायल ही इतना देर में कराती है, उनको उनके मुकदमे में तो लंगर आन करती है कि वो लड़के जेल में 2-4 साल 10 साल जो उनका क्रीम टाइम है पढ़ाई लिखाई का वो व्यतीत हो जाएगा, हो जा रहा है। और जब वो निकलेंगे तो उनकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। तो आतंकवाद वास्तव में कोई समस्या हमारे देश की नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या तो भूख है, रोटी है, गरीबी है। यहाँ बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए,
और बच्चों को रोज़गार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो चाहे हिंदू का लड़का चाहे मुसलमान का लड़का कोई आतंकवादी नहीं होगा। लेकिन भूख और गरीबी को मिटाना सरकार का उद्देश्य नहीं। अगर यहाँ का रेलवे स्टेशन डेवलप नहीं करता है, अगर यहाँ पर कल कारखाने नहीं बनते हैं, अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं बनती है, अगर यहाँ के जो वस्त्र उद्योग जो पूरे देश में प्रसिद्ध थे वो बंद हो चुके हैं, वो उनको फिर से चालू नहीं किया जाता, कराया जाता है, अगर यहाँ की चीनी मिलें नहीं खुलती हैं जो बंद हो चुकी हैं, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आजमगढ़ का विकास होगा? और जब आजमगढ़ का विकास नहीं होगा तो यहाँ के नौजुवक क्या करेंगे आप बताइए? कैसे कोई रोक सकता है उनको बर्बाद होने से? उनको तो कोई भी राजनीतिक दल यूज़ कर सकता है और राजनीतिक दल यूज़ कर ही रहे हैं उनको। आजमगढ़ में कभी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। आजमगढ़ में कभी इस तरह के सांप्रदायिक बिखराव की स्थिति नहीं पैदा हुई थी। आजमगढ़ में कभी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और ये उलेमा क्या कहते हैं कौंसिल जैसी पार्टियों का वर्चस्व नहीं था, मगर आज बहुत ज़्यादा वर्चस्व इनका बढ़ता जा रहा है। आपकी समस्याओं का कारण धर्म नहीं है, जातीय झगड़े नहीं है आपकी समस्याओं का हल। और ये जो मीडिया और ये जो सरकारें जो प्रचारित करती हैं कि आजमगढ़ आतंक की नर्सरी है, आजमगढ़ के मुसलमान बहुत गड़बड़ हैं, ये सब झूठ है, ये साम्राज्यवादी चाल है, ये कुचक्र है। और इसे तोड़ करके ही महंगाई आएगी, दाल महंगी होगी तो मुसलमान के लिए भी महंगी होगी और हिंदू के लिए भी महंगी होगी। तो हमें इस कुचक्र के खिलाफ, हमें साम्राज्यवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। ये बात हम अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से भी, अपनी गोष्ठियों के माध्यम से भी लोगों के बीच में ले जाकर कहते हैं। सामूहिक कारवां पहले कारवां के नाम से निकलती थी। 1997 में ये निकलना शुरू हुई थी और पहले ये दिल्ली से, कभी उत्तराखंड से, कभी देश के विभिन्न स्थानों से निकली, लेकिन बाद में ये चलते चलते स्तरीय लेख न मिलने के कारण और आर्थिक संकट के कारण ही बंद हो गई। फिर 2006 में इसका प्रकाशन का जिम्मा हम लोगों ने लिया कि नहीं, हम लोग फिर से इसको निकालेंगे। 5वां वर्ष है और 16वां अंक, किसी अंक में गैप नहीं हुआ इसके। वैश्विक मंदी और साहित्य, प्रतिरोध संस्कृति और आक्रोश, भ्रष्टाचार और न्याय, डॉक्टर विनायक सेन के बारे में। ठीक, आगे बढ़िए। फोटो बहुत अच्छा। विज्ञापन वाली मीडिया है जो चटक पटक खबरें निकाल करके और अपने अखबार को, अपने मैगजीन को बढ़ाना चाहते हैं, वो आजमगढ़ को दूसरी दृष्टि से देखते हैं और उन्हीं का यह प्रचार प्रसार है कि आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी घोषित किया गया। हम जो कारवां के माध्यम से इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि जो सही तथ्य है आजमगढ़ के साथ साथ इस पूरे प्रदेश और देश और दुनिया के बारे में जो सही सच है वो जनता तक जाए। दिल्ली विल्ली में अगर आजमगढ़ के बारे में कोई जानता है तो वो सिर्फ क्या आतंकवाद है। हाँ, वो केवल आतंकवाद ही जानता है, वही नहीं जानता कि आजमगढ़ में इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ आदमी जिंदा है और कागज मरा हुआ है और तमाम मरे हुए लोगों ने यहाँ पर संघ बना रखा है। वो सब डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा ये मृतक संघ है, मृतक संघ के हम अध्यक्ष हैं, हम मंत्री हैं, हमारे सदस्य हैं और हम अभी जिंदा हैं, हमको कागज़ में मार डाला गया है, हमारी संपत्ति हड़प ली गई है, हम कृपया हमको हमारी संपत्ति दिलाइए। भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा इस तरह से। और अन्ना हजारे की जो मतलब क्या कहते हैं, जो उनकी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना है वो दिल्ली तक ही सीमित रह जाएगी। जिस समय अन्ना हजारे दिल्ली में बैठे हुए थे उस समय भी आजमगढ़ में भ्रष्टाचार कार्यालयों में चरम सीमा पर था, कोई उसका असर नहीं पड़ा। सियाह रात भी है, सुर्ख आफताब भी है। दोस्त ये दुनिया बहुत अच्छी है, ख़राब भी है। ये हकीकत है भूख ज़िंदगी नहीं देती,
मगर इस भूख की तलखी में इनकलाब भी है। सैनिक बनकर लड़े लोग, घर लूट लिया रखवालों ने, सारे शहीद गुमनाम हो गए, सत्ता ले लिया दलालों ने। ऐ दोस्त चलो मिलकर बारूद बिछाएं हम बीमार व्यवस्था के बदनाम सुराखों में। Rate of unemployment is very high in Azamgarh. But curiously, educational establishments and outfits are mushrooming all around. Education, nevertheless, and especially English language education, everyone here believes, is the only way out of the deplorable condition Azamgarh feels it has fallen into. Final, finality, finalize, finalization, democracy, democracy. Don't say doctor, is wrong. Say doctor. Stress on first level. Doctor. Say doctor. Say horse. Don't say horse. Horse is a wrong pronunciation. Say horse. Above. I got to go. Wanna dance? What's your name? In my opinion, आजमगढ़ is one of the most educated area of India. क्योंकि यहाँ पे हर आदमी लगभग ग्रेजुएट है. Let's see how repeated action is connected to. Actually मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ. प्लस मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिखाता हूँ, बच्चों को एक्सेंट सिखाता हूँ, अमेरिकन एक्सेंट नॉर्मली वी वर्क ऑन दैट. इट्स गोइंग वेल. राइट नाउ हमारी 2 ब्रांचेस चलती हैं एंड वी हैव ट्रेन मोर देन 10,000 स्टूडेंट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग अ गुड लाइफ बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएशन देन देयर आफ्टर व्हाट यू कैन डू. आप BPO तक में नहीं जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में नहीं आ सकते हैं क्योंकि करियर के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है. तो टेक्निकली मैं जो जोड़ पाता हूँ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक कम्युनिकेटिव स्किल, इसको हम लोग सॉफ्ट स्किल कहते हैं. मैं पहले UP बोर्ड स्टूडेंट था तो एक पेन था मेरे अंदर कि जब मैं ज्योति निकेतन के बच्चों को या बाहर के बच्चे मिलते थे तो मैं जब उनको बोलते हुए दिखता था तो मेरे अंदर एक इच्छा पैदा होती थी, व्हाई नॉट आई शुड ट्राई. मैं क्यों नहीं बोल सकता ऐसे. बट हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे यहाँ स्पोकन सेंटर्स नहीं थे और इतना कोई ट्रेनर नहीं था इस तरह का जो बच्चों को ट्रेन करे. तो पहले मैंने खुद पे काम किया कि मैं खुद कुछ लाइनें बोल सकूँ. आई कुड स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग. और मुझे ये याद है मैं ऑब्जेक्ट से बोलता था और कुछ चीज़ों को लेके सामने. और उस समय TV चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे, तो जो था DD1 DD2 था वो भी बहुत साफ़ सुथरा नहीं आता था. तो मैं कहा कि अगर मैं ये सीख लिया हूँ थोड़ा तो क्यों नहीं मैं स्टार्ट करता हूँ. तो मैंने 96 में 18 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया. ये दौर 15 साल का इजी नहीं है, लोगों को समझाना पड़ता था. मैं गांव में गया, लोगों को इंग्लिश के बारे में बताया, लोग हंसते थे, मुझे अभी भी याद है. बट आज वही लोग करते हैं और कितना अच्छा रिजल्ट आया. लोग पूरा जीवन ही चेंज हो गया. जो सहजता थी इंग्लिश समझने में, बोलने में, वो बढ़ गई. लीडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो लोग भी आते हैं सबको बेनिफिट होता है. Ma'am, family has been here last 100 years. We have been here. In this surrounding where we live, actually, it is 50% Muslims, 50% Hindus, some Sikh families. So we live together in harmony, and I think it's been a nice example. People coexist actually here. मैं खुद पूरे ईद में मैं इतना बिजी रहता हूँ, मुझे लगता है खुद मेरे घर ईद है, जबकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे बिजी नहीं रहना चाहिए. मेरे फादर, मुझे अभी भी याद है कि ईद के दिन और वो टोपी पहनते थे मुस्लिम वाली. एक बार ज़ही सर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो हम लोग 6 साल तक एक बड़ी सी मोटी सी पाइप यहाँ से हमारे घर से उनके यहाँ गई, जो इलीगल था सड़क को क्रॉस करना, फिर भी जाती थी और उससे उनका पानी भरता था. और ऐसा 1-2 दिन नहीं हुआ, 6-7 साल, और वो पाइप हम लोगों ने हटाई नहीं.
और लोगों ने हटाने के लिए भी नहीं बोला। थोड़ा देख के लोगों को सरप्राइज़ होता था, ऐसा कैसे, बट ऐसा है। और आज भी जब भी कोई दिक्कत होती है, और मेरे फादर जब मरे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसी फैमिली ने हम लोग की मदद की। जब कोई परेशानी आती है तो वी आर वन इन हैप्पीनेस एज वेल एज इन सॉरोज। न तो कोई एरिया ख़राब होता है, न कोई एरिया बहुत अच्छा होता है। ये वहाँ के रहने वाले हैं, वह उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक नाम लूँगा, अबू सलीम का। वो गया, उसकी फैमिली गई यहाँ से, और वो लोग सेटल हो गए। वो लोग बम्बैया ज़्यादा हैं, आजमगढ़ के कम हैं। लेकिन अगर अबू सलीम ने कोई हरकत कर दी तो वो बम्बई की गलती नहीं मानी गई, वो जहाँ से पैदा हुआ था वहाँ की गलती मानी गई। तो यह जो सोचने का तरीका है या सोचने का नज़रिया है कि आदमी का जो सारी कर्मभूमि है, सारा टाइम जहाँ गुजरा, वहाँ की गलती ना मान करके आप उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन पे चले जाइए। तो यह जो देखने का नज़रिया है, ये बहुत नैरो नज़रिया है, और आजमगढ़ इसी का विक्टिम हुआ। नाम आ गया, अब नहीं नाम करेंगे तो यहाँ से नाम टाइप करना पड़ता है। हिंदी में कैसे करते हैं हम, बतला रहे हैं। घर पे कर रहे थे तो सब आ ही नहीं रहा था। ये बात, ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ये हिंदी में आएगा। अच्छा। हमारे यहाँ शिवली कॉलेज में जो बच्चे आते हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये प्रोविजन है कि ये डिप्लोमा कोर्सेज जो DOACC के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, NCPL का और वो लेवल का, ये वो कर सकते हैं। और उन्होंने जब ये कोर्सेज किए तो उस कोर्सेज का करने के बाद उनको जो नौकरियाँ मिलने लगी, वो कम्पीट करने लगे। और जब आजमगढ़ का यूथ कम्पीट करने लगा, वो इस सब जगहों पर आने लगा, तो उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जब मुस्लिम यूथ जो, आप एक तरफ कहते हैं कि भाई वो गिटाइजेशन हो रहा है और ये पढ़ते नहीं हैं और ये बिल्कुल पीछे जा रहे हैं और मुल्क की तरक्की में इनका कोई रोल नहीं है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब ये आगे आ रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और मुल्क के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो रहे हैं, तो आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि नहीं, ये तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बटला हाउस इनकाउंटर के बाद तो वाकई जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज़मगढ़ की पिक्चर पेंट की और सारी चीज़ें, तो उससे तो एकदम से सारे लोग सख्ते में आ गए। मुसलमान, हिंदू, जितने लोग थे सारे लोग उससे अफेक्टेड हुए। जो यहाँ का एक ख़ास कम्युनल एमिटी जो रही है यहाँ पे, और लोग जो मिलजुल के रहते रहे हैं, तो उन लोगों ने ये समझा इस बात को और बाकायदा इसका पता लगाया कि इस तरह के लोग थे कि नहीं, ये जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे वाकई क्या इनके अंदर कोई इस तरह के एक्टिविटीज़ थी। तो उन्होंने पाया कि नहीं, ये सब बेसलेस है। और धीरे धीरे अब जाहिर बात है मेन मीडिया में सारी बातें आ गई हैं और सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई है। तो बहुत ज़्यादा डैमेज इनिशियली तो कहा जा सकता है कि बहुत ज़बरदस्त डैमेज हुआ, और आज़मगढ़ का जो एक बरसहा बरस का सैकड़ों साल का जो एक तारीख़ थी आज़मगढ़ की, उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। और अगर आप इसमें गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि इसके पीछे भी वही फोर्सेस काम कर रही थी, यानी वही वोट पॉलिटिक्स काम कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को आपस में लड़ाया जाए और पोलराइजेशन किया जाए। आम तौर पर अगर आप सीरियल्स वगैरह सारे देखिए तो ऐसा लगता है कि जैसे इस देश में हिंदू ही रहते हैं। अगर आप पार्टिकुलरली इवन जो डीडी उर्दू है या ETV उर्दू है, उनके सीरियल्स पे भी आप चले जाइए तो इक्का दुक्का ही सीरियल आपको ऐसे मिलेंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित हैं। ऐसा लगता है जैसे इस देश में सिर्फ हिंदू ही रहते हों। यह चीज़ भी गलत है, और यह चीज़ ऐसा है कि जो यंग माइंड्स पर यह असर डालती है कि इस कंट्री में ये बाकी लोग जो हैं वो बाहरी हैं। सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अलावा और भी दूसरे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बुकलेट टाइप चीज़ें या डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप, तो इस तरह से अलग अलग एंगल पे या पब्लिक प्रोग्राम करते हैं ह्यूमन राइट्स पे। एक नए तरह की हम चीज़ चाह रहे हैं आज़मगढ़ के अंदर कि कुछ हो, बहस हो आज़मगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे चाहे पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं
या धार्मिक प्रोग्राम होते हैं या फिर क्रिकेट मैच या काव्य सम्मेलन या मुशायरा। इसके अलावा यहाँ के मुसलमान या हिंदू इससे ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। हमारी क्या समस्या है, उस समस्या का क्या समाधान होगा, इन सब चीज़ों पे बात नहीं होती। बहुत अगर कभी बात करते हैं लोग तो होटल पे बैठ के बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये बहस एक बने, आम बने, गांव के अंदर बने, चौराहे बने, कहीं भी बने, ज़िले में बने। तो ये लगातार उस पर एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रुप के काम के अलावा और क्या काम वगैरह आप करते हैं? ज़्यादातर मेरा टाइम इसी में बीतता है। मतलब 24 घंटे में 18 घंटा तो लगभग मेरा इसी में बीत जाता है। मतलब एक तरह समझिए मैं नालायक हूँ घर वालों की नज़र में। वो अलग बात है, समाज के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो ये है कि घर वाले भी अगर बाहर निकलते हो तो उनको एक हिम्मत मिलती है, हौसला मिलती है कि मेरा लड़का अच्छा करता है। लेकिन घर आने के बाद फिर वही एक चीज़ आती है कि नालायक हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ सपोर्ट भी करते हैं घर वालों, कभी मना नहीं किया इन सब कामों के लिए। I felt a compelling desire to go to Madrasatul Islah. It is situated a small drive away from main Azamgarh town at a place called Sarai Meer. Madrasatul Islah is quite popular these days for its efforts of combining new, technical, science-based disciplines with the traditional, religion-based education. This madrasa has been around for quite a long time, actually since 1908. These are the days of madrasas being seen as harbingers of trouble, as those penumbric spaces that nurture shadows of secession and terror. So what is the truth? I really wanted to see on my own from the inside, at least of this one madrasa, one of the most hallowed and respected in Azamgarh, yet lately quite suspect, if one goes by the word of the mainstream media. मदरसतुल इस्लाह की बुनियाद दरअसल एक समाजी तहरीक के उन्वान से उठी और इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से वो तहरीक चली। लेकिन हमारे जो बहुत सारे दर्दमंद हजरात थे यहाँ के, जैसे मौलाना शफ़ी साहब, मौलाना अब्दुल अहद साहब और दूसरे बुजुर्ग, उन लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे रस्म व रिवाज का और खुराफात का ये जो सैलाब है वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि उनको तालीम न दी जाए। इन सारी अमराज का इलाज तालीम है। सिर्फ मतलब तबलीग से नहीं ख़त्म होगा। हम किसी को मान लिए कोई रस्म व रिवाज ख़त्म कर दे, जड़ तक जाना पड़ेगा और जड़ के लिए ज़रूरी है कि उसको सही तालीम मिले। जब सही तालीम मिलेगी तभी उसके आमाल सही होंगे। और इस गरज के लिए, उस तहरीक को मुफीदतर बनाने के लिए मदरसतुल इस्लाह का क़याम अमल में आया। अच्छा, ये जो नया एक तरह का एक ट्रेंड चला हुआ है जिसके अंदर मदरसों के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे भी कहते हैं लोग कि अबुल बशर जो है इस्लाह से पढ़े हुए थे, तो ये इल्ज़ाम इनकी क्या बेसिस है? ऐसा है, हमें समझते हैं सब इल्ज़ाम है। देखिए, जांचने का तरीक़ा ये नहीं कि बाहर की दुनिया क्या करती है। जांचने का तरीक़ा ये है कि जिस शहर या जिस ज़िले की बात की जाती है वहाँ के गैर मुस्लिम अवाम क्या करते हैं। संजरपुर जिसका नाम ख़ास तौर से लिया जाता है, वहाँ के कुल गैर मुस्लिम भाई भी सब क्या करते हैं, दियार के आ गए थे। उन्होंने भी कहा कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है, सब बच्चे बहुत नेक थे, बहुत साले थे, बहुत अच्छे थे, पढ़ते थे। ये तो मीडिया की और हुकूमत की कारस्तानी है कि जो ये कर रही है। हमारा पूरा दियार, हमारा पूरा आजमगढ़ हमको नेक बना रहा है। आप दिल्ली से आके कहें कि साहब क्या कहते हैं आप बदमाश हैं, तो हम कैसे मान लें? गांधी जी का कातिल कौन था? क्या कोई मुसलमान था? क्यों नहीं उस वक्त क्या कहते हैं कहा गया कि पूरी हिंदू कौम क्या कहते हैं आतंकवाद है? सबसे पहला कत्ल हुआ है जिसको आप बाबा कौम कहते हैं, 2 अक्टूबर जिनकी जयंती मनाते हैं, तो पूरे हिंदू कौम को नहीं आतंकवाद कर दिया गया। मैं मीडिया को कसूरवार ठहरा रहा हूँ कि मीडिया ने हकीकत नहीं पेश की। बहुत कुछ जानकारी उनको थी हक़ाइक़ की,
कि आजमगढ़ के ताल्लुक़ से जो कुछ कहा जा रहा है वो सही नहीं है, वो सच को सामने लाना था। लेकिन उन्होंने वही मफरूज़ा जो अव्वल दिन से मीडिया में चल रहा था उसी को दोहराते रहे, और वो सारी हकीकतें जो उनको मालूम थी, यहाँ आकर के सर्वे किया, दौरा किया, आजमगढ़ के गांव-गांव में गए, शहर गए, लेकिन उन्होंने हकीकत बयानी से गुरेज किया। मीडिया का रोल जो है उसमें साफ नहीं था, जबकि मीडिया को बहुत ईमानदार होना चाहिए। इदारा ये तालीम नहीं देता है कि आतंकवाद बन जाएं। आज हिंदुस्तान जो करप्शन फैला हुआ है, ये जितने मिनिस्टर हैं, जितने MLA हैं, MPs हैं, वो भी किसी इदारे के पड़े हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं कहता कि आप ये आतंकवाद है? ये क्या इदारे ने कहा कि तुम चोरी करो, तुम घपला करो? आज सब घपले आ रहे हैं, तो क्या कोई इदारा ही सिखाता है? चाहे सेकुलर इदारा हो या मजहबी इदारा हो, वहाँ तालीम सच्चाई की दी जाती है। अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में इतनी रकम है कि अगर वो हिंदुस्तान वापस आ जाए तो हिंदुस्तान को पूरा कर्जा अदा हो जाए। किसने जमा की है? हमने जमा की है, मुसलमानों ने जमा की है। ये तो ही हैं जो मुल्क के रखवाले हैं, जो मुल्क के मुहाफिज बने हुए हैं, वही डाकू हैं, वही चोर हैं। कौन ले गया स्विट्ज़रलैंड में पैसा? हमारा तो नहीं है। ये अब तक जो पकड़ा गया, अब तक जिस पे केस चल रहा है वो तनहा मुसलमान है, समझा? और बकिया स्विट्ज़रलैंड के खाते जो है, और मत करें कि भाई 99% और जो नाम है वो क्यों नहीं दिए जा रहे? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रही हुकूमत से हैं कि वो भी तो हमें चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तनहा एक जो है मोहम्मद हसन या मोहम्मद क्या नाम है, अली हसन ही यहाँ पर मतलब स्विट्ज़रलैंड का जो है वो क्या ना खाता होल्डर है। सरे दस्त तो इल्ज़ाम है उस पर, और बकिया जितने नाम हैं वो सुप्रीम कोर्ट मांग रही कि उस पर कब केस चलेगा, उसकी फहरिस्त कब दी जाएगी। हमने तो यहाँ के DM साहब से कहा था कि आप 12 बजे रात को आइए, जिसको आप आतंकवाद कहते हैं, जिस इदारे को यहाँ के कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं, आप 12 बजे रात को आइए, चुपके से आइए, देख लीजिए यहाँ लाठी भी सिखाई जाती है या क्या कहते हैं तलवार और बम और तो दूसरी चीज़ है। चुनाचा वो उन्होंने यहाँ के सिलसिले में एक अच्छी रिपोर्ट दी थी जो आपके असेंबली में पेश हुई थी। लेकिन भाई ताकत आपके पास है, मीडिया आपके पास है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कोई मीडिया हो, वो आप जो चाहे वो कहिए, हमको चोर कहिए, हम चोर बने रहेंगे। इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देता। इंसानियत मर रही है, और इंसान जिसे तरक्की कह रहे हैं आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंसानियत मर रही है। One of these evenings, while I'm filming some high-angle shots, I hear that there have been some serial bomb blasts in Mumbai once again. In Azamgarh, Rights Police immediately does a flag march. Somebody comes and sarcastically speaks. These days, even if a firecracker goes somewhere in any part of India, police immediately clamps down on Azamgarh in the name of precaution. I go to meet Vishal one last time before I leave Azamgarh. यहाँ का हर यूथ कुछ ना कुछ करना चाहता है, बस उनको वे नहीं मिलता है। एंड द यूथ, दोज हु डोंट हैव गाइडलाइंस, दे डेफिनेटली गो ऑन द रॉन्ग पाथ. सो however we need to motivate them, we put them into the right direction, and if we could put them into right direction, they can win this contest. I'm very sure. Yes, raise a hand to say we are there and we can talk best and we can compete with each and every part of the world. Really? Yes. Yes. So always that.
why you are making a movie on that, a documentary movie on the Azamgarh only? Why don't you show your interest in the rest of the India? I leave Azamgarh with my head buzzing with all kinds of thoughts. One thing though I'm sure about is that it is not as dangerous a place as somebody like me sitting in Delhi would imagine it to be. And maybe the importance of taking Azamgarh seriously is because at this juncture of our history, it almost shows like a metaphorical mirror, reflecting our own anxieties, fear, desire, success and failures as a nation and as a people.